So type number 5 is based on the concept of what? Binomial theorem. Two particular cases of discrete probability distribution are binomial distribution and Poisson distribution. Consider an example of throwing a fair coin. The outcome of this experiment will be either head or tail. If this experiment is repeated 9 times, then we say that 9 trials of the experiment are carried out. In general, if the number of trials n is small, bracket less than 30, and if you want to study the probability distribution of random variable, you have to get acquainted with binomial theorem. Binomial theorem bracket for all n which belongs to n bracket close. We know that x plus y raised to 1 is equal to x plus y. X plus y raised to 2 is equal to x square plus 2xy plus y square हो जाएगा. X plus y the whole cube is equal to x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube. Therefore, in general, if n is a positive integer and x and y are any two numbers, then x plus y the whole raised to n is equal to nc0 x raised to n plus nc1 x raised to n minus 1 into y plus nc2 x raised to n minus 2 into y square plus nc3 x raised to n minus 3 y raised to 3 plus dot ncn y raised to n. We'll start with the sums based on type number 5. Now type number 5 जो है, this is question which is based on binomial distribution. Now in few of the questions दिया रहेगा कि ये binomial distribution है, कोई question में नहीं दिया रहेगा. We need to identify this. And यहाँ पे लिखा है exercise 8.3. Now see, when the exercise number यहाँ पे लिखा है ना, तो पता चल जाता है कि ये बाइनोमियल के सम्स आएंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज में सारे सम्स बाइनोमियल के ही है. बट एग्जाम में ये कौन से एक्सरसाइज का सम है ये तो नहीं लिखा रहेगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू रीड द क्वेश्चन एंड देन वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा टाइप है. इसलिए ये चैप्टर में अगर देखा रहेगा तो हमने टाइप नंबर लिखा है. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द कंडीशन कि ये क्यों टाइप नंबर 5 या टाइप नंबर 3 या टाइप नंबर 2 में जा रहा है. यस, तो वो कंडीशन स्टार्टिंग ऑफ द टाइप में बताया है कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. सो जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट सम देखा, द क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स. इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 2 सक्सेसेस, सेकेंड at least 3 successes, third at most 2 successes. So यहाँ पे the question is a die is thrown 4 times. अब जब एक डाई थ्रो करते हैं ना, we have 6 possibilities. So when 2 dice are thrown ना, we have 6 raised to 2, that is 36 possibilities. 3 डाइस अगर थ्रो किए रहेंगे ना तो 6 raised to 3 हो जाएगा, which will give you 216 possibilities. And जब 4 dice मतलब a die is thrown 4 times, that is same as 4 dice are thrown जैसा condition. So that becomes 6 raised to 4. And 6 raised to 4 का मतलब होता है 6 into 6 into 6 into 6. मतलब 6 6 are 36, 36 6 are 216 and 216 into 6, which is 1296. अभी उतना सारा सैंपल स्पेस लिखना ये फिजिबल नहीं है. This is not feasible. So now over here we need to understand कि यहाँ पे we cannot write the sample space. मतलब ये मेरा discrete random variable में PMF का सम नहीं हो सकता है. So in this case we need to understand over here कि my value of n जो है that is 4, मतलब number of trials जो है that is 4. फिर x जो मेरा कंडीशन दिया है, if getting an odd number is success, so I'll write यहां पे let x denote getting an
ऑड नंबर. इन गेटिंग एन ऑड नंबर अगर इसको सक्सेस काउंट करना है, सो वी राइट ओवर हियर P ब्रैकेट गेटिंग एन ऑड नंबर. सो जब डाई थ्रो किया जाता है, वी हैव 1 2 3 4 5 6. इसमें से वी हैव 1 3 एंड 5. ये तीन वैल्यूज ऐसे जो ऑड है. सो यहां पे 3 आ जाएगा अपॉन यहां पे 6 आ जाएगा. एंड दिस इज नथिंग बट माय वैल्यू ऑफ व्हाट? P, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. एंड ये हो जाएगा हाफ. सो P इज इक्वल टू हाफ आ गया. यस, फर्दर हमने सीखा था कि अगर P मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो Q जो है ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है. एंड P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है. तो वी कैन फर्दर से कि Q इज इक्वल टू 1 माइनस P आ जाएगा. ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2. यस, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. सो यहाँ पे एलसीएम में ये आ गया अपॉन में 2. इधर आ जाएगा 2 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ Q. सो यहां पे मेरे पास P रेडी है, मेरे पास Q रेडी है, मेरे पास N रेडी है. नाउ फर्दर उन लोग ने मुझे यहां पे सिंस ये सब कंडीशन रेडी है एंड सिंस इसका सैंपल स्पेस लिखना पॉसिबल नहीं था, सो इसलिए हमने इसको PMF वाले कैटेगरी में काउंट नहीं किया, दैट इज टाइप नंबर 2 में काउंट नहीं किया. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सिंस ये टाइप 2 में नहीं आ सकता है, टाइप 3 में तो जाएगा ही नहीं क्योंकि मीन एंड वेरिएंस नहीं पूछा है फॉर PMF या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो टाइप 3 भी नहीं हो सकता है. टाइप 1 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइप 1 जो है वो तो खाली डिस्क्रीट या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो वो भी फिजिबल नहीं है. सो अभी तक जो हमने सीखा उसमें टाइप 1 2 3 तो पॉसिबल नहीं है. एंड देन वी स्टार्टेड विद टाइप 5. तो ये टाइप 5 में इसीलिए जाएगा क्योंकि 1 2 3 में नहीं जा रहा है. 4 एंड 6 जो टाइप है वो जब हम वो टाइप करेंगे तब पता चलेगा कि वो टाइप में क्या वर्ड्स या क्या कंडीशंस रहेंगे. सो वो टाइप 4 और टाइप 6 के जो वर्ड्स आएंगे वहां से पता चलेगा कि ये टाइप 4 और टाइप 6 में भी नहीं जा सकता है. सो अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज टाइप नंबर 5. सो दैट इज द रीजन वी राइट X. सिंस ये टाइप 5 में जा रहा है, इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज फॉलोज. ये B का मतलब है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ब्रैकेट में n कॉमा P लिखते हैं. n के जगह पे व्हाट इज n इन दिस क्वेश्चन? इट इज 4. सो यहां पे 4 आ जाएगा कॉमा P लिखते हैं. यहां पे P का वैल्यू क्या है? हाफ. तो इधर आ जाएगा हाफ. सो फर्दर यहां पे अभी फर्स्ट सब क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस. सो यहां पे आ जाएगा P of X इज इक्वल टू 2 एंड अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन ये हो जाएगा NCX. तो ये जो लिखा ना, ये जनरल फॉर्मूला लिखा NCX P raised to X Q raised to N minus X. And now we'll substitute the value of N, we'll substitute the value of X, we'll substitute the value of P, we'll substitute the value of Q. ये सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो ये हो जाएगा 4C2 1/2 रेज टू X एंड X का वैल्यू क्या है? 2. तो यहां पे 2 आ जाएगा. Q जो है उसका भी वैल्यू हाफ है. सो यहां पे हाफ लिख देंगे. रेज टू N माइनस X. अच्छा, N का वैल्यू क्या है? 4 माइनस X का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा 4C2 1/2 रेज टू 2 1/2 रेज टू, ये भी 4 माइनस 2, ये सिंप्लीफाई होके 2 आ जाएगा. नाउ 4C2 को सिंप्लीफाई करना है. दिस इज कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट. सो ये कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट है वो 11th स्टैंडर्ड में था. दैट इज इसको क्या करना है? 4C2 लिखा ना, तो 4 को 2 बार खींचना है, तो 4 उससे एक नंबर कम, तो यहां पे आ जाएगा 3. मतलब ये n है तो ये n-1 है. अपॉन सिंस 4C2 है तो अपॉन में आ जाएगा 2 into 1 into
सिंस इसका बेस और इसका बेस सेम है, सिंस द बेस ऑफ दिस एंड दिस इज सेम, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है. सो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको 1/2 द होल रेज टू 2 + 2. यहां पे चाहिए तो हम लिख सकते हैं a रेज टू m into a raised to n which is equal to a raised to m plus n. yes, ये वो कंडीशन हो गया कि बेस सेम था तो पावर्स को ऐड किया, बेस सेम है पावर्स ऐड हो गए. सो ये बन जाएगा, दिस इज 1 जा, दिस इज 2 जा, 2 into 3 तो ये 6 हो जाएगा, into ये हो जाएगा 1/2 the whole raised to 4. So according to this ये हो जाएगा 6 into 1 raised to 4 मतलब 1 होगा, and 2 raised to 4 मतलब 2 into 2 4, 4 2s 8, 8 2s 16. So ये 16 आ गया. This is equal to 6/16 which is same as 3/8. and ये क्या मिल गया मुझे, P of x equal to 2 का वैल्यू, that is 2 सक्सेस का वैल्यू आ गया. एंड 2 सक्सेसेस को हमने लिखा था P of x equal to 2, इसलिए यहाँ पे P of x equal to 2 is equal to 3/8 आ गया. ये हो गया मेरा फर्स्ट सब क्वेश्चन. नाउ सेम वे आई नीड टू कैलकुलेट द सेकेंड सब क्वेश्चन, बट बिफोर वी कैलकुलेट द सेकेंड वन, एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू है यस इसको भी डेसिमल टर्म्स में लिख देते हैं. सो वी राइट यहाँ पे P of x equal to 2 का वैल्यू एज 0. अभी 30 हो जाएगा तो 8 के टेबल में 30 तो नहीं आएगा, तो 8 के टेबल में 30 से पहले जो नंबर आता है वो है 8 3 24. सो बच जाएगा 6, तो 60. अभी 8 के टेबल में 60 के नजदीक का नंबर जो है वो है 8 7 56, तो 4 बच जाएगा, 40 मतलब 40, तो 8 5 तो इसलिए इसका वैल्यू आ गया 0.375. So either my answer is 3/8 और डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.375 आ जाएगा. And now we'll start with the second sub question, that is P bracket condition है at least 3 successes. सो एटलीस्ट 3 सक्सेसेस बोला है, मतलब कम से कम 3 सक्सेस होना चाहिए. 3 रहेगा तो चलेगा और उससे ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, बट 3 से कम नहीं हो सकता है. एटलीस्ट इसका मतलब होता है कम से कम उतना होना चाहिए, कम से कम वो वैल्यू होना चाहिए. उससे ज्यादा होगा तो चलेगा बट उससे कम नहीं चलेगा. मतलब कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, मतलब 3 रहेगा तो भी चलेगा और 4 रहेगा तो भी चलेगा. अच्छा यहां पे क्यों सिर्फ 3 और 4 आएगा, बिकॉज यहां पे n जो है वो 4 है. सो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 4 तक. सो P of x equal to 3 और आया इसलिए यहां पे प्लस लिखा, P of x equal to 4. सो दिस इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 4C3 1/2 raised to 3 1/2 raised to 4 minus 3 plus 4C4 1/2 raised to 4 1/2 raised to 4 minus 4. सो 4C3, तो इसको सिंप्लीफाई करने का है, 4 को 3 बार खींचो तो 4 into 3 into 2 अपॉन ये हो जाएगा 3 into 2 into 1 into ये हो जाएगा 1/2 raised to 3 into 1/2 raised to 1 प्लस 4C4, तो इसको लिखेंगे 4 into 3 into 2 into 1, 4 को 4 बार खींचो अपॉन 4 into 3 into 2 into 1 into ये हो जाएगा 1/2 the whole raised to 4 into 1/2 the whole raised to 0. सो यहां पे ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4. अभी इसका बेस और इसका बेस सेम है. नाउ सिंस द बेस आर सेम
एंड ये मल्टीप्लीकेशन है, वी एड द पावर्स. सो यहां पे आ जाएगा 1/2 रेज टू 3 + 1 प्लस इधर ये 4 कैंसल, 3 कैंसल, 2 कैंसल, 1 कैंसल. ये मल्टीप्लाई है. इसका बेस और इसका बेस, ये दोनों भी बेस सेम है. अगेन द बेस इज सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है. सो ये हो जाएगा 1 into ये हो जाएगा 1/2 रेज टू 4 + 0. एंड यहां पे मैं लिख दूंगा इट इज a raised to m into a raised to n which is equal to a raised to m plus n हो जाएगा. And now we can further write this as this is 4 into 1/2 raised to 4 हो जाएगा प्लस ये तो 1 है, तो 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा. एंड ये हो जाएगा 1/2 raised to 4. And this will give me the answer as 4 into ये जो 1/2 raised to 4 है, तो 1 raised to 4 ये तो 1 देगा, एंड 2 raised to 4 ये मुझे 16 देगा, प्लस ये 1 raised to 4 तो 1 देगा, 2 raised to 4 तो ये 16 देगा. So this is equal to 4/16 plus 1/16 which is equal to 5/16. एंड इसी को अगर मैंने डेसिमल के टर्म्स में लिखा तो ये हो जाएगा 0.16 3 48 हो जाएगा. तो 20 तो 16 1 16 मतलब यहां पे बचेगा 4. तो 40 मतलब 40, तो 16 2 32 तो बचेगा 8 80 मतलब 16 5 एंड सिंस यहां पे एटलीस्ट 3 सक्सेसेस था, इसलिए ये हो जाएगा मेरा p of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. इसलिए यहां पे p of x इक्वल टू 3 प्लस p of x इक्वल टू 4 लिखा. यस, वी कैन ऑल्सो राइट दिस कंडीशन यहां पे एस p of x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. यस, ये लिखा फिर ये मिला तो भी चलेगा, या डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा. सो नाउ विद दिस यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड सब क्वेश्चन हुआ है. सो राइट नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट.